Hello everyone. First of all, welcome to all of you. And today we are going to discuss about the literary sources. And we have already seen that some of the literary sources, those were religious literature and secular literature. And in this class, we will see the third literature, the third literary sources, that is the literary works. Literary works. साहित्यिक all right, so we know that the sources of Indian history is divided into three parts: archaeological sources, literary sources, and third is our archival sources. And likewise, the literary sources is also divided into four parts. So one is our religious literature, second is our secular literature, and third is our literary works. That is we are going to discuss about. And last is our foreign account. So what is the literary source, literary works? Those were, let us see. Alright. तो देखो ये अतीत विभिन्न प्रकार लेखा माने लेखा जाउथिला विभिन्न कवि माने नाटक एवं कविता माने लेखुथिले से सब जिनिसटा से सब लेखाटा किछि मात्रा रे हमर ऐतिहासिक उपादान हिसाब रे ग्रहण करा हला। तो देखो दोज वेयर से नाटक लेखा माने कोन कोन थिला इन एंशिएंट पीरियड पार्टिकुलरली इन गुप्त एज दैट देयर वाज कालिदास. Kalidas, you know very well that he is the Shakespeare of India. Kalidas को Shakespeare of India कहते हैं, है ना? तो कालिदास पांचटी पुस्तक लिखिथिले नाटक एवं महाकाव्य मिसई करी. तो देखो सेटा फास्ट लिखिथिले अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्षियम वर्षी एवं मालविका विका ग्निमित्रम. ओके, तो एटा तांकर नाटक थिला कार कालिदासर कोगोडा अभिज्ञान शकुंतलम एवं विक्रम वर्षियम एवं मालविका ग्निमित्रम. तो यहाँ मध्य से महाकाव्य मान लिखिते सेटा होछि रघुवंशम, एंड कुमार संभवम. एटा तांकर महाकाव्य थिला. ता सहित से खंडकाव्य भी लिखिते जोटा कि हमरा ऋतु संहार ओके. तो these literary works give the history of Guptas. गुप्त मानकर इतिहास केवल एही कालिदासଙ୍କ रचित महाकाव्य किंबा नाटक मानकर ही पाइथो. ओके, सो नेक्स्ट important literary works, those were, let us see. हमर दश कुमार चरित, दश कुमार चरित. Okay, Dasa Kumar Charita, it was written by Dondin. Was the writer of Dasa Kumar Charita? किए लिखिथिले? Dondin लिखिथिले अमर Dasa Kumar Charita. तो आउ जने किए थिले अमर विष्णु शर्मा. He wrote पंचतंत्रम. It was written by Vishnu Sharma. And Mrichapatikam was there. Mrichapatikam, and it was written by Sudra. So these literary works
also give the contemporary society. ओके तो एंशिएंट जुगर प्राचीन जुगर सोसाइटी किपरि थिला से सबुर घटना एही तीनोटी वा एही परि लेखा माने कोन इतिहास प्रदान करिथांती बा कोनसी तथ्य प्रदान करिथांती. Those are very very important for the history writing of ancient India. Okay, so in southern India there was developed Sangam literature. From the Sangam literature we can collect a lot of information about the history of Chola, Chera एवं Pandya. Okay, Sangam literature. We know that the Sangam literature is the very important source material that is considered for the southern India. Okay, Sangam literature को कोड़ा तो देखो मणिमेकालाई second is our Chintamani and third is our Bhutam Puram Mopuram. Bhutam Puram Mopuram. These were the Sangam etc. These were the Sangam literature. Okay, so this Sangam literature gives that we have already talked, that is about the Chola, Chera and Pandyan history. Okay, so it also gives the information about the 500 BC to 500 AD of the southern India. Okay, तो यह दीर्घ 1000 वर्षर इतिहास कहार साउदर्न इंडिया रा देइथे कोडा संगम लिटरेचर. Okay, so these are all about the ancient India's literary works. In medieval India there was also various type of literary works. Those were let us see. तो medieval जुगर मध्ये विभिन्न प्रकार लेखा माने लेखा जायतला जोडे कि हमर इतिहास लिखिबारे एवं अध्ययन करिबारे अनेक मात्रा सहायक होइथांती. Those were first Alberoni. Alberoni कोन लिखिले हिरोज तारीख ई हिंद. ओके, से कोन लिखिले तारीख ई हिंद लिखिले एवं आउ जने व्यक्ति मीनाज उस सिराज लिखिले कोन तबाकत ई नासिरी. ओके, एवं आउ जने लिखिले बोरानी जियाउद्दीन बोरानी तारीख ई फिरोज शाही. ओके, तो एटा थिला हमर मिडियवल जुगर लेखा मन हला. तो ठीक सही परी आ विभिन्न प्रकार लेखा देछि. देखो मुगल पीरियड तो एटा पार्टिकुलरली हमर सुल्तानेट पीरियड रे एई सब लेखा माने जोटा कि कंटेम्पोरारी सोसाइटी विषय विशेष तथ्य प्रदान करथंती हला. तो मुगल जुगर मध्ये विभिन्न प्रकार लेखा दिला. देखो तुजुक ई बाबरी जोटा कि बाबर निजे लिखिथिले आत्मचरित हला. तापरे हुमायून नामा was written by Gulbadan Begum. Humayun's sisters was Gulbadan Begum. ओके, तो हुमायून नामा के लिखिले हमर गुलबदन बेगम तांकर भौणी निजे लिखिले. ओके, तो देखो अकबर नामा लिखिले ठीक सही पड़ी. अकबर नामा was written by Abul Fazl. He was the court maid of Akbar.
ओके एवं कादिर लिखले मोहम्मद कादिर लिखले आलमगीर नाम okay these were the medieval writers okay which gives a lot of information about the contemporary society of the Mughal period okay so what happened we these were all about the literary works of ancient India and medieval India so this is considered the most important source of literary sources okay so next आमे पढ़िबा कोन next literary sources that is the foreign account foreign account माने वैदेशिक विवरण ओके वैदेशिक विवरण तो देखो वंस ओपन इन कोन होतला विभिन्न परिप्राजक माने फॉरेन ट्रैवलर कोन करथिले हमर भारत को आसुथिले एवं विभिन्न समय दे आसीथिले एवं से माने कोन करथिले हमर इंडिया रे बहुत वर्ष अध्ययन करी हमर इंडिया रे रही आदिवासी हेकरे रही से माने कोन करथिले विभिन्न लेखा माने लिखिथिले हमर कंटेम्पोरारी सोसाइटी एवं कल्चर विषय रे तो दोस वर लेट अस सी फर्स्ट Megasthenes okay he was a Greek traveler से कौन ग्रीस रो परिव्राजक थिले से आसीथिले चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ समय चंद्रगुप्त मौर्य he came to India during the time of Maurya period particularly the Chandragupta Maurya and he wrote one particular book that is Indica से कोन लिखिथिले गोटे पुस्तक लिखिथिले तार नाम होचे इंडिका in which he mentioned about the administration of the Mauryas मानकर शासन पद्धति विषय लिखिले एडमिनिस्ट्रेशन तापरे पाटली विभिन्न सिटी रो वर्णना करथिले डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटीज पार्टिकुलरली पाटलिपुत्र है पाटलिपुत्र गोटे सिटी थिला तार विशेष विवरणी वर्णना करथिले कि मेगास्थेनिस तांको इंडिका पुस्तक ओके एवं सही समय सोसाइटी मध्य एही बुक रे वर्णना रहिथिला alright this is the first foreign traveler of the Greek okay of India so next important foreign traveler that is the Fahian and he was from China second foreign traveler that is Fahian okay and he was from China and he came to India particularly during the Chandragupta Maurya second not Chandragupta Maurya Chandragupta second he came to India during the time of Gupta ruler particularly Chandragupta second and he wrote one book okay in which he described about the various cities of India like Buddha Pataliputra Nalanda and also he described से कोन करथिले विभिन्न लेखा माने लिखिथिले about the बुद्ध धर्म की पड़िथिला जैन धर्म की पड़िथिला एवं ब्राह्मण धर्म की पड़िथिला से टाइम रो वर्णना आयन निजर पुस्तक फोक यू की रे वर्णना करछंती तो सही थी पई हमर तांकर पुस्तक फोक यू की आमे विशेष भाव रे कोन ग्रहण करथु इतिहास लिखिबारे बा अध्ययन करिबारे ओके and it is useful for the same also for the writing of history and for the story of history of India okay so next important foreign traveler that is the
Wensa. You know that he is a famous foreign traveler. And he came to India during the time of Harshavardhana. Okay. He was also a Chinese foreign traveler. Faiyan was, we know that the Chinese foreign traveler. Likewise, the Wensa also a Chinese traveler. He came to India during the time of हर्षवर्धन हर्षवर्धन को समय ये मध्य आसीथिले एवं से गोटे पुस्तक लिखिथिले तार नाम थिला सी सी यू ओके he wrote one book that is the CUK in which he mentioned about the society economy of ancient India during the time of Harshavardhan. Okay, and also he mentioned about the various cities like Pataliputra, Buddhagaya, Nalanda, and he also came to Odisha also. Odisha मध्ये এই হবেলসম ভ্রমণ করে আসিଥିଲେ বলি কহি জনাଥାଏ ओके तो देखो से मध्य एही पुस्तक रे कोन सब वर्णना करथिले विभिन्न रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विषय रे विभिन्न यूनिवर्सिटी विषय रे जोटे कि नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी these were the cities those were mentioned in the CUK books these university were mentioned okay तो देखो आउ कोन सब वर्णना थिला तो देखो आउ सही समय मध्ये पाटलिपुत्र रो वर्णना विशेष भाव रे थिला एवं कुंभ मेला की पड़तिला देखो कुंभ मेला ये पर्टिकुलरली हमर हर्षवर्धन को समय रे एटा करा जितिला सही कुंभ मेला रो विशेष विवरण एही CQ पुस्तक रे वर्णना करा जायछि एंड बिसाइड दिस ओनोज assembly also mentioned in this book है प्रयाग संघ व प्रयाग assembly विषय रे वर्णना करा जायछि एही पुस्तक रे so next important foreign traveler that is the Singh he was also a foreign traveler एवं से कोन वर्णना करथिले हमर बुद्धिजीम किभଳି भारत रे डिक्लाइन मा पतन आड़ को अग्रसर करथिला से विषय रे हमर इत्सी कोन करथिले वर्णना करथिले से मध्ये हमर इंडिया रे विभिन्न यूनिवर्सिटी रे अध्ययन करि करि से ए सब जिंस वर्णना करथिले हमर कंटेम्पररी सोसाइटी विषय रे वर्णना करथिले विभिन्न सिटी विषय रे मध्ये वर्णना करथिले so these were the ancient foreign traveler who and which and for their literary works and for their accounts we can have easily the information of ancient India okay so let us see in medieval foreign traveler medieval जुगरे मध्ये विभिन्न foreign traveler आसिथिले सेमानकर लेखा मध्ये आमे इतिहास लेखिबारे सहायक करिथौ बा सहायक पाइथौ ओके तो देखो फास्ट होचे हमर इबन बतुता ओके ही वाज मोरक्को ट्रैवलर तो इबन बतुता पार्टिकुलरली गोटे बुक लिखिथिले तार नाम होचे किताब उल रहला एवं से पार्टिकुलरली मोहम्मद बिन तुगलक को समय आसीथिले मोहम्मद बिन तुगलक हमर दिल्ली सुल्तानेट रो गोटे राजा थिले तांको समय हमर इबन बतुता आसीथिले एवं गोटे पुस्तक लिखिथिले कोन किताब उल रहला ऑलराइट तो एही आ विभिन्न प्रकार फॉरेन ट्रैवलर आसीथिले ताको सेमाने होते देखो अब्दुल रजाक
अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, and Niccolo Conti. These were the foreign traveler of Sultanate period. एमाने दिल्ली सुल्तानेट को समय रे आसीथिले किए फॉरेन ट्रैवलर माने एवं एमानकर लेखारु आमे दिल्ली सुल्तानेट रो सोसाइटी तांकर शासन पद्धति कि पड़थिला तांकर अर्थनैतिक व्यवस्था कि पड़थिला से विषय रे आमे जानि परथो। तो देखो मोगल युग रे मध्ये विभिन्न फॉरेन ट्रैवलर आसीथिले से माने होचंती फर्स्ट विलियम हाकिन्स, एटा सब ब्रिटिशर मानथिले हला इंग्लैंड वास्ते। ताबरे होची थॉमस रॉय, पीटर मुंडी, एडवर्ड टेरी, okay, these were the Mughal foreign traveler कि विलियम हॉकिन्स, थॉमस रॉय एंड पीटर मुंडी एवं कौन एडवर्ड टेरी एमाने होचंती मुगल जुगर परिव्राजक एवं एमाने इंग्लैंड रो आस्थिले पार्टिकुलरली मुगल पीरियड हला। तो एमाने मध्ये कोन करथंती विभिन्न तांकर तथ्य गोटे विवरणी रे वर्णना करथंती एवं एही सब विवरणी द्वारा आमे मुगल जुगर इतिहास जानि परथो। So these were the literary sources that we discussed right now and completed also. And next class we will see the foreign accounts, which is the last sources of Indian history. Okay, so right now this class completed. Okay.